Good evening and welcome. So I welcome all of you to the Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet, our regular Wednesday meet, and the first session of this year. So I welcome you all, and let's celebrate the beginning of the new year with a wonderful topic of spirituality. So spirituality is a vast topic. It is actually vast like an ocean. So the best part is that whatever we discuss today, we will be on target. इतना बड़ा टॉपिक है कि उसमें कुछ भी हम डिस्कस कर लें तो वो स्पिरिचुअलिटी के अंदर ही आएगा. हाँ, सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट द सेशन विद एन इंक्वायरी इनटू व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी. हम लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं. यस, एंड वी हैव बीन डूइंग दैट फॉर क्वाइट सम टाइम. Some of us are been dedicatedly doing this for decades. So what is spirituality? What does it mean to you? Or what does it mean to us? Why this is important in today's life? And of course, how do we monitor or how do we do self-analysis, swadhyay, of our spiritual journey? So these are the questions that we will be, or these are the points which we'll be inquiring into in the session today. So welcome all of you, and I throw the discussion open with the topic of what is spirituality. So all of us can share, and also you can also share what has been your journey in this lifetime. मोर अप्रोप्रिएट अगर आप बोलें डिवाइन हीलिंग वैली के साथ जुड़ के जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं पिछले 4-5 साल से, अगर आप हैं इसमें, बिकॉज वी हैव बीन कंडक्टिंग दिस सेशंस फॉर द लास्ट 5 years. सो इफ यू हैव मेड एनी प्रोग्रेस इन दिस 5 years, यू शुड से दैट. अदरवाइज आप शेयर कर सकते हैं आपकी लाइफ में, इस लाइफ टाइम में आपने क्या स्पिरिचुअल प्रोग्रेस अचीव की है. सो दैट जर्नी यू कैन शेयर. सो वी नो वेयर यू आर, and then we move on to where we want to be, and that is what is actually that is spirituality. So let's have some people share what is spirituality, what is opening up. कौन बोलना चाहेंगे? अनिरुद्ध जी बड़े दिनों बाद आए हैं आज. Welcome back. Yes, and Leslie welcome. Yes, so what is spirituality? It is a general topic, so we can start with whatever is your interpretation, and there is no राइट आंसर हियर. जो भी आपके एक्सपीरियंस हैं, जो भी आपकी जर्नी है, आप उसके बारे में शेयर कर सकते हैं. यस, तो maybe I can say something which I kind of put in words, and I have said this in podcast also. Yeah. Very crisp. The way, so I compare it with the other two elements of our existence. So I say the study of body is biology, the study of mind is psychology, and study of soul is spirituality. Okay. Very crisply, but can go on and on. But yeah. So that's a good. That's a good start. That's a good point from where we can take off. Yeah. So study of the body is biology, study of the mind is psychology, and study of the soul or self, that is, you can say, spirituality. Okay, very good. So let's acknowledge Amit ji for that. Thank you. Anybody else who wants to add on to it or have some different point of view, you can go ahead. If you translate spirituality, it would in scriptures it is mentioned as adhyat. Adhyat means अध्ययन, किसका? आत्मा का, है ना? तो knowing yourself, knowing Atman, knowing soul, self study, स्वाध्याय. So अध्ययन करना आत्मन का. Now Atman is also referred to as the lower self or the ego. तो अहम जो है, अहम को हम ईगो मान सकते हैं और हायर सेल्फ को हम आत्मन मान सकते हैं. सो जर्नी इज बेसिकली फ्रॉम द ईगो टू द सोल. सो दैट इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ लुकिंग एट व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी. तो हम जहाँ पे हैं और जो जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, उन दोनों के बीच में जो फासला है, उस पुल को, द ब्रिज, दैट कैन बी कॉल्ड एज द स्पिरिचुअल जर्नी और द स्पिरिचुअल पाथ. Right? So that is another way of looking at what is spirituality. मैं आज कहाँ हूँ, क्या हूँ, और मेरा हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है पहुँचने का, जहाँ मैं उस स्तर पे पहुँच सकता हूँ. उन दोनों के बीच में जो फासला है, उसके ब्रिज को हम स्पिरिचुअलिटी बोल सकते हैं. स्पिरिचुअलिटी टेक्स अस देयर. So that is another way of looking at it. Yes, anybody else who has anything that you want to share? What is spirituality?
Leslie, Anirudh ji, Satbir ji, Tarun ji. Yes, Leslie, go ahead. वैसे तो ये टॉपिक बहुत वास्ट है. देयर इज नो एंड टू द वर्ड्स दैट यू कैन से, बट आई कैन ओनली से हाउ इट स्टार्टेड फॉर मी. And that is for me, the most important question which occurred to me was why it's happening to me. That's it. And that was my start of the journey, and that kept on taking me deeper and deeper into understanding everything, how things are connected. So मेरे लिए why बहुत important रहा शुरू से. Okay. That's it. Very good, Leslie. Let's acknowledge Leslie. Leslie has actually touched on a very, very powerful topic. Why is this happening to me is normally referring to some kind of suffering or dukh or some tragedy या some unpleasant events. हम बोलते हैं कि यार ये क्यों, अच्छी चीजों में तो हम कभी नहीं बोलते ना ये मेरे साथ क्यों हुआ, हाँ प्रमोशन क्यों मिल गया, वाह, नहीं ऐसा कोई नहीं पूछता है. तो वो तभी हम पूछते हैं जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, कुछ अनचाहा होता है, तब हम बोलते हैं why is it happening to me. And that is true because life is always testing us. Yes or no? हम जो भी हैं, जहां पे भी हैं, life is always coming to us at point blank and testing us and telling us what we are actually and where we need to be. तो अगर हम कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं अपने अंडरस्टैंडिंग में, then the life will show us lessons which we need to learn. अगर हम लेसन नहीं सीख रहे हैं तो लाइफ के इवेंट्स रिपीट होते रहते हैं. How many of us have seen that? Yeah. If you don't learn the karmic lesson, the events keep on happening again and again and again. People will change, situation will change, time different होगा, place different होगा, people different होंगे, लेकिन lesson वही है. जब तक नहीं सीखेंगे तब तक life will keep on teaching us, right? So that is also a part of your spiritual growth. How fast we can learn the karmic lessons, move on, and then make progress on the journey. So very well said, Leslie. जब भी कोई suffering या misery आती है, कोई tragedy आती है, कोई दुख आते हैं, that is an indicator how we are progressing on our spiritual journey. Good. Let's acknowledge Leslie for that. Yes. Anybody else? Tarun, you want to share something? What is spirituality for you? Good evening, everyone. Wish you all a very happy new year and prosperous year. And may each one of us grow in this path to achieve the best what we can in this lifehood. And according to my understanding, of course, everybody who has said is very valid from like I learned beautiful concept today. Biology is for body, psychology is for mind, and spiritual journey is for your soul. Rather, I used to say this also that in every evening as we have 3 meals in a day, every evening I go for meditation, it is for my soul. But now I'm able to relate to that very much. So my understanding of spirituality is that this is your one part which you are role which you are playing. The deeper connections are for the deeper cause. Till the time you don't reach, you will keep taking the rebirth in one or another form. Till the time you don't reach to that highest level of the soul where you want to reach. So the sooner you will adapt or understand that science and you align yourself to that, the better it is, the faster you can reach to that level of Buddhahood, which we say, where everything comes very naturally to you. You think and it is there, something like that kind of magic. So it can only happen when you reconnect deeper within your side, and it can, everyone, maybe I believe most of the people has got connected in this when they are very badly shaken and deep and gone under the ground because of circumstances, external circumstances. Then they reflected on themselves what has not worked with them,
what has worked with them. And that is the moment when they got into this and everybody have evolved as per their learnings. So this is my understanding of spirituality. Wonderful. Tarun, that's a very wonderful way of putting it. Yeah. So some suffering, some dukh comes into your life, and then we see this cannot be the way my life is going to turn out. Something else has to be there, and then you start the quest, and that is the journey of awakening. That is the awakening that you need. तो life will, जैसे बोलते हैं ना, झटका देते हैं, हाँ? तो it will wake you up, it will shake you up unless you are ready to move forward. वहां बैठने नहीं देगी लाइफ. अगर आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, उस अंडरस्टैंडिंग को सही समझने के लिए लाइफ आपको इवेंट्स देंगी, एंड इवेंट्स आते रहेंगे जब तक आप लेसन नहीं सीखेंगे. जैसे ही लेसन सीख लिया, आपकी जर्नी शुरू हो जाती है, एंड देन यू विल पिक अप स्पीड एज पर योर desire, your passion, whatever you can say. So there is nothing wrong with desire and passion. Only thing is it should be for the highest and not for the smallest. हम लाइफ में बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए अपने डिजायर और पैशन को वेस्ट कर देते हैं. तो desire and passion are very very powerful, you can say, tools that we have, but it should be for the highest. It should enable us to reach the highest level of our potential. So taking the discussion further, so we have seen a bit of what is spirituality. Yes. Now let us look at why spirituality is important for us today. Or you can also share what spirituality has done to bring you to this level today. हमने जो भी अपने प्रैक्टिसेस किए हैं, अपनी जर्नी कभी शुरू किए हो, तो उस पे चलते हुए हम आज जहाँ पे पहुंचे हैं, वो जर्नी के बारे में आप शेयर कर सकते हैं अपनी, so that others can get some insight into what could possibly open up for them. And also we can also look at what spirituality can do in our day-to-day life today. So we want to basically look into you can say our own lives, right? क्योंकि actually spirituality भी क्या है? Instead of talking of past lives or future lives, we will talk of present life. That is more relevant. क्योंकि डे टू डे लाइफ की बात करें तो आज की लाइफ की हम बात करें. क्या स्पिरिचुअलिटी मेरी आज की लाइफ को बेटर बना सकती है किसी भी एस्पेक्ट में? देन स्पिरिचुअलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर मी. यस. सो वी विल लुक एट इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. क्योंकि बहुत लोग हैं जो बोलते हैं मुझे नहीं मालूम पिछले जन्म में मैं क्या था, अगले जन्म में क्या होगा. मुझे तो ये बताओ स्पिरिचुअलिटी से मुझे इस जन्म में क्या मिलेगा. विल इट हेल्प मी टू गेट ओवर my illness and disease and live a very healthy life? Then I'm interested. Does it help me to build my finances and live a very, you can say, wealthy life? Then I'm interested. Or does spirituality help me in experiencing fulfillment in my relationships? Then I am interested. क्योंकि मेरी लाइफ में सिर्फ हेल्थ और रिलेशनशिप्स हैं आज की डेट में. Yes. So will spirituality help me in that? So if that is a question that comes to us, how we say that spirituality has been useful or can be useful in these aspects. So let us first look into what I am today. मैं आज क्या हूं? क्या हूं मतलब? We are triune beings. We all know that human being is a triune being. जैसे हमें जी ने अभी बताया, body, mind and soul, 3 aspects, and we exist at all the 3 levels. And तीनों लेवल पे हमारी needs अलग-अलग हैं. बॉडी की नीड, खाना पीना सोना, यस, एंड भूख लग रही है तो खाना खा लिया, वैसे ही नींद आ रही है तो आराम कर लिया, एंड देन यू हैव ए फैमिली लाइफ, तो you reproduce and forward your lineage, so that is one way, so that your continuity in the family is on. These are some of the aspects of the body, correct? Mind is always looking for pleasure and avoiding pain. तो माइंड की नीड थोड़ी सी अलग है, राइट? तो जैसे बोलते हैं तन को रोटी मन को राम. तो that is how you can look at it. Need of the body is different, need of the mind is different, and obviously need for the soul is transcendence,
मूविंग टू द हाईएस्ट पोटेंशियल, चेतना के उच्चतम स्तर पे पहुंचना ही सोल की एक जरूरत है, राइट। तो शरीर की जरूरत पूरी होती है, हम करते ही हैं, रोज रोज हम 3 मील्स खाते हैं ऑन एन एवरेज, 3 meals, देन वी हैव 6 to 8 hours स्लीप। तो खाना पीना, आराम और काम करना, ये सब शरीर की जरूरतें हम देख रहे हैं। माइंड भी प्लेजर्स एंड पेन को अवॉइड करके प्लेजर को एंजॉय करने के लिए माइंड इज ऑलवेज रेडी। सो वी हैव द एक्सपीरियंस ऑफ दैट ऑल्सो। यस, हाउ आर वी टेकिंग केयर ऑफ द soul need? That is what is important for spirituality. अपने माइंड को कैसे हम शांत रह सकते हैं, स्थिर रख सकते हैं, और आत्मा की जो पुकार है उसको सुन के कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, that is the spirituality we are talking about. तो आज की डेट में मैं कौन हूं ये जरूरी है। तो what kind of ego is dominating me? मेरे कौन से विकार हैं जो मेरे को अभी भी दुख दे रहे हैं या परेशानी दे रहे हैं? क्योंकि बाहर की दुनिया में कोई ऐसी दुख की व्यवस्था नहीं है, हमने अपने दुखों की व्यवस्था अपने आप ही कर ली है, राइट। तो हमारे विकार, हमारा जो अहंकार है, अहंकार के बहुत सारे शेड्स हैं, इन्हीं की वजह से हमको दुख अनुभव हो रहा है, क्योंकि हमारे चेतना का स्तर ही हमको बताएगा कि हम कैसी जिंदगी का अनुभव कर रहे हैं। ये सुनो, हर एक की लाइफ का अनुभव अलग अलग है। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना का स्तर अलग अलग है। ह्यूमन बीइंग हैव एन एक्सपेंडेबल कॉन्शियसनेस, सो डिपेंडिंग ऑन द level of the consciousness you experience life. Everybody does that. तो हमारे दुखों का कारण बाहर की दुनिया में नहीं है, हमारे इनर वर्ल्ड का ही प्रॉब्लम है ये। तो वो हमारा करंट स्टेटस है। सो करंट स्टेटस, अगर मैं यहाँ पे हूँ, एक्स में हूँ, और मेरे को हाईएस्ट पोटेंशियल वाई तक जाना है, तो वो जो पाथ है, ऐसे सेड, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। उसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स है, टेक्निक्स की बात आज नहीं करेंगे। यहाँ से वहां जाने के लिए आप कौन सा मार्ग चुनते हैं, वो एंटायरली आपका अपना एक कॉलिंग है, आपकी सोल कॉलिंग है, वो आपको पता लग जाएगा। थोड़ा सा आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, यू विल नो आपको कर्म योग करना है, भक्ति योग है, राजयोग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, धारणा, ध्यान, समाधि, प्राणायाम, मेडिटेशन, if that is your calling. So what you will have some kind of a calling and you will follow that and you will go to the higher level. But the point is, मैं आज कहाँ हूँ, किस भी लेवल पे हूँ, और वहां से उच्चतम स्तर पे जो पहुंचना है मुझे, इसकी अगर अवेयरनेस है मुझे, then I am a conscious seeker, then I am a awakened person who is moving on a conscious spiritual evolution. That is the point. Yes? Everybody okay with that? Yeah. So let's have some people share what kind of journey are we on, and personally we will share that personally from our life. कि कौन सी जर्नी पे मैं हूँ, क्या अचीव किया है और क्या अचीव करना चाह रहा हूँ, so that we are also clear, others can also get some clarity कि how their journey can proceed on this spiritual path. कौन बोलना चाहेंगे? So I've thrown some pointers here and there so that you can pick it up and see how your life has moved and how you intend to move your life through to reach the highest potential. Purpose of life एक ही है। Purpose of, अगर आप पूछें purpose of my life क्या है, to attain the highest level of, to operate at the highest level of potential. highest potential पे पहुंचना है। अभी मैं कहीं पे भी हो सकता हूँ, मे बी 5% पोटेंशियल, जैसे अगर 0 to 100 की रेटिंग अगर लें, 5% पे हो सकता हूँ, 50% पे हो सकता हूँ, 80%, 85%, 90% पे हो सकता हूँ। बट देयर इज ऑल, जहां पे भी मैं हूं उसका नेक्स्ट लेवल अवेलेबल है। So how do I move? What I have done to move to this level, and now what I am planning to do for the movement to the next level. That will show. And once you reach the highest potential, what happens? ये भी देख लेते हैं। अभी क्या कर रहे हो आप, वो तो आपको मालूम ही है। आज इस लेवल पे मैं हूं और मैं क्या कर रहा हूं, ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो प्रेजेंट है। अगर हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाओगे, या जब भी
जो भी पहुंचोगे, जब भी पहुंचोगे, क्या करना चाहोगे आप? लाइक फॉर एग्जाम्पल, Sachin Tendulkar at his best, 100 hundreds. Everybody relates to it. Correct. Amitabh Bachchan, you can say, has reached the highest level of, as an example, highest level of achievement in Bollywood film industry. Similarly, there could be sports personalities or other personalities, maybe in politics, maybe in sports, maybe in as a scientist. सबने अपने अपने लेवल पे हाईएस्ट पोटेंशियल पे अचीव किया हुआ है. So spirituality helps you to attain the highest potential, and that will create a, you can say, distinguishing result in the outside world. Yes. तो जब आप हाईएस्ट लेवल पे पहुंचेंगे, आप क्या डिस्टिंग्विश करना चाह रहे हो या क्या ऐसा रिजल्ट अचीव करना चाह रहे हो, that will show some clarity. Yes. So anybody who wants to share, please go ahead. Meanwhile, let me welcome Oppo A53. अब कौन है ये? I won't know. So if you want to introduce yourself, if you want to share something, please go ahead. Yes. Who would like to share? Leslie, Tarun, Anirudh ji. अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, अपनी आगे के प्लान या आगे का जो भी आपका spiritual growth है, where do you want to take it from, where do you want to achieve, attain? Anybody? How many of us have done स्वाध्याय and seen मैं आज क्या हूँ, मैं आज कहाँ हूँ, क्या हूँ, कहाँ हूँ और कहाँ पहुंचना चाहता हूँ? अगर ये क्लियर है आपको, तो आपका पाथ अपने आप खुल जाएगा. Yes, Tarun, go ahead. So, as thanks to Amit ji first for introducing me to DHV. This journey has began unknowingly. I met Amit ji for in one of the co-working space. We went on a track for another reason, but the bond got so deepened that the level of sharing that we were doing was completely different. And at no point of time in life, I have any idea that I will get in this state and I will get in this spirituality journey so soon. और बिकॉज बचपन से क्या बड़ा ये बूढ़े होने के बाद आते काम, जब बूढ़े हो जाओगे कुछ काम नहीं होता तब आप भगवान का नाम ले लो, है ना. तो दैट वाज द इमेज एवरी गाइस बचपन में जो होता है वही रहता है. बट आई गेस गॉड हैज ब्लेस्ड मी दैट द मोमेंट आई फॉल इनटू अ पिट, अ डार्क पिट, मतलब वेल ऐसा था जिसमें पानी भी नहीं था, सूखा पड़ा था और मैं जमीन से बिल्कुल नीचे था. So I was feeling in that kind of state where Amiji and you have held my hand and given me all the best guidance you can, guys, with your best of the knowledge and the healing power that you have. You have sent your healings, of course, Amiji also. So you both has played a very vital role in hooking me into the spiritual journey. And then the knowledge through your sessions, like Vedanta Wisdom, NLP. So these has helped me to move forward in the life and see life from different perspective. In this 1.5 year, I can say that I was under the ground. Now my head is above the ground. I'm able to pull myself from that. Now I'm able to see things around. What was not doing well, what I was doing well. In this 1.5 year, I became more financially comfortable, which I wasn't. I became more emotionally stable, which I wasn't. I became more calmer, which I wasn't. My perspective of looking, if anything, pain also comes, has got completely changed. That something is hidden, which is bringing life, I'm not able to see right now. It will come in some time when it is the right time comes. So that kind of thought process has completely got evolved. And even if I talk less to people, like Amit ji say, कई बार
बात बहुत कम हो पाती है, Hmm. बट जब भी बात होती है इट इज मोर फ्रॉम द हार्ट ओनली, है ना? तो एंड इट इज नेवर फेल्ट कि हमें बहुत टाइम बाद बात कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कल ही तो बात की थी, आज दोबारा बात हो रही है. तो दैट काइंड ऑफ बॉन्डिंग एंड फीलिंग आई फील नॉट जस्ट विद अमित जी बट नाउ विद ऑल द पीपल अराउंड व्हेन आई स्पीक एंड कनेक्ट. बट अमित जी का इसलिए बोल दिया बिकॉज that was the deeper first connection where we started. So Yeah. this journey has been a commendable and I'm loving it every day. The things I keep seeing things changing every day around in my personal life, and this is what I have to share. That's it. Fantastic, fantastic, Tarun. Let's acknowledge Tarun ji. Wonderful sharing and tremendous power in in transformation. That is what I can see here. And Yeah. thank you for your acknowledgements to Yeah. for Amit ji. Yeah, great. One thing wonderful that Tarun has said is he is enjoying the journey. हमेशा डेस्टिनेशन ही अट्रैक्टिव नहीं होता है, जर्नी डेस्टिनेशन से ज्यादा जरूरी होती है, because that is where we learn the karmic lesson, that is where we develop our muscles, and that is how we move ahead. Correct? And we all know when we are talking of reaching the highest potential, अगर हम एनर्जी सेंटर्स के हिसाब से बात करें तो कॉन्शियसनेस के लेवल पे यू कैन से देयर आर 7 levels, the 7 energy chakras that we talk of, right? तो मूलाधार और रूट चक्र could be the lowest of the major chakras. So we can just start our analysis from the consciousness at the root chakra or the Mooladhara, and in 7 steps you reach the 7th level of the 7th major chakra, which is the Sahasrara or the crown chakra. So this rising of consciousness is actually the spiritual journey. यानी कि आपकी चेतना का जो स्तर है वो मूलाधार से उठता हुआ सहस्रार तक जाएगा. That is the journey of spirituality. Yes, everybody can connect with this. I hope all of you are a little bit aware of the chakras, correct? So that is the journey we are talking of, but you don't have to be happy only when I reach the third eye or the Sahasrara. The journey itself is joyful, is blissful, and that is what life is all about. So life हमेशा इम्तिहान लेगी. In fact, life is a test. Life doesn't take a test. Life is a test. तो यहीं पे पता लगेगा मैं कितना ईगो में हूं और मैं कितना फ्री हूं, क्योंकि लोअर चक्रास आर कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय द ईगो पैटर्न्स, है ना. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी इज आइडेंटिफाइंग द ईगो पैटर्न्स विच आर बाइंडिंग मी. एक्चुअल में कोई बॉन्डेज है नहीं, पर ईगो की कुछ पैटर्न्स हैं जिनके कारण मैं प्रिजन में हूं, ऐसी फीलिंग आती है, एंड दैट इज द बॉन्डेज. करेक्ट? सो वी हैव टू ब्रेक द कंडीशनिंग ऑफ द ईगो पैटर्न्स. That is a very, very predominant step in the path of spirituality. तो तारुण ने भी अपने जो शेयर किया उसमें क्या दिखा? Freedom from the bondages. कौन से bondages? Which were keeping him down. जमीन के भी नीचे लेवल पे पहुंच गए थे, बोल रहे हैं वो वहां से उठ के आए हैं, तो उठ रहे हैं, that is a journey. But then कैसे ऊपर उठे? फर्क क्या था? Being free from the bondages, being free from the mental cage. और ये मेंटल केज ही है हमारा प्रिजन. ये ईगो का प्रिजन जो है ये मेंटल केज है. एंड द प्रॉब्लम इज इट इज नॉट ए केज मेड ऑफ आयरन, इट इज अ केज मेड ऑफ गोल्ड. तो अननोइंगली वी कीप पॉलिशिंग द केज. वाओ कितना अच्छा केज है, सी आई कैन लाइक ए बर्ड, आई कैन फ्लैप माई विंग्स, आई कैन मूव अराउंड लेफ्ट राइट, 2 फुट आगे 2 फुट पीछे मूव कर रहा हूं, मैं बहुत फ्री हूं, कोई डेंजर नहीं है, नो ईगल इज गोइंग टू ईट मी. Imagine yourself as a bird in the cage. What is the bird in the cage doing? खाना मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई खतरा नहीं है, कोई बिल्ली नहीं आएगी, कोई ईगल नहीं आएगा, बट है तो केज में. बर्ड का हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है? फ्लाइंग हाई इन द स्काई. वो बर्ड कहाँ पे है? केज में है. So the spirituality is for that bird, if you use that metaphor, to get out of the cage, spread the wings and fly in the sky.
that is the highest potential for the bird. Agreed? लेकिन बर्ड वहीं पे खुश है. क्यों खुश है? कंफर्ट जोन में है, बल्कि वो रोज अपने सोने के पिंजरे की तारीफ भी कर रही है. सी, माई केज इज सो गुड, खाना भी मिलता है, जिसने मुझे बांधा हुआ है केज में वो मेरे को प्यार भी करता है. So we are creating, we are loving our bondages. We means who is actually loving these bondages? The ego. हमारा अहंकार है जो हमको इस केज में ही रखे हुए है, वो बाहर निकलने ही नहीं देगा. So spirituality is all about breaking the bondages of your ego, breaking the conditioning of the ego patterns, and then making that journey. And it's a courageous journey. It needs a lot of strength and stamina to move on this journey, to break the conditioning of the ego, to move to the higher levels of consciousness where you are absolutely free. And when you reach the highest potential, what will happen? You will become a blessing for humanity. You don't have to serve humanity. You will, whatever you do will be a blessing for the humanity. That is the promise of that highest potential. So how many of you can connect with what I'm saying? No? Okay, so let's have some people share. Tarun has raised the hand. Okay, Tarun, go ahead. नहीं, जो बॉन्डेजेस ये सिर्फ ईगो से होते हैं या इमोशंस से भी होते हैं? मतलब वो वहां पे, मतलब जहाँ पे लव है वहां पे ईगो थोड़ी होती है. मैं वो समझना चाह रहा हूँ, वो कैसे डिफरेंशिएट करें? आप ईगो के अलावा कुछ हो ही नहीं. जब तक आप इस शरीर में हो, ईगो तो रहेगा ही ना. हाँ, पर हर थिंग ईगो सेपरेट होती है, ये क्वेश्चन है मेरा कि एवरीथिंग ऑपरेट्स फ्रॉम ईगो ओनली, और देयर when you बॉन्डेजेस say कैन बी I, मैं, मेरा, तो मैंपन मेरापन ही तो अहंकार है, यही तो ईगो है. ईगो कैसे आता है सामने? हाउ विल ईगो रन योर लाइफ? मेरा मेरा घर, मेरी नौकरी, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरा संसार, मेरे बच्चे, जहां आप मैं और मेरा बोल रहे हैं, ईगो इज वेरी मच प्रोमिनेंट. और इसके अलावा हमारी कोई लैंग्वेज होती नहीं है. करेक्ट? तो अगर मैं कल को बोलता हूँ कि मेरे गुरु से जो मैं सीखा हूँ मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो ये ईगो से ही कहाँ से? लव जब तक से है. आप मेरा बोल रहे हो, ईगो है. तो फिर इसको सटल कैसे होगा, इसको सटल होगा, हार्मलेस होगा, पर है. फिर और इसको वो फिर खत्म कैसे करें? विकृत रूप तब लेता है वो, जब वो हार्मफुल हो जाता है. when you are possessed by the ego and you are operating under the negative emotions or negative, you can say, sanskars of fear, victim ego. तो इस मेरा को या मेरे मैं को ये इसको फिनिश कैसे करें फिर? क्योंकि कम्युनिकेशन कैसे वो ये, अब ये तो है ही ना कि किसी से सीख रहे हैं आप. Focus on your spiritual sadhana first your calling has to be there for the spiritual sadhana, and as you move on that you will experience freedom from the ego, in the sense that आपका मैंपन और मेरापन थोड़ा कम हो जाएगा. और ये तब होगा जब आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको डिस्टिंग्विश कर पाओगे, अपने विकारों को. और द बेस्ट वे टू गेन फ्रीडम फ्रॉम ईगो इज टू एक्सपोज इट. ईगो थ्राइव्स इन डार्कनेस. ईगो थ्राइव्स इन डार्कनेस, विच मीन्स व्हाट? इग्नोरेंस में है. जब तक आप ईगो को डिस्टिंग्विश नहीं करोगे तब तक वो हावी रहेगा. डिस्टिंग्विश कर दोगे, उसका असर खत्म हो जाता है, उसका पकड़ ढीला हो जाएगा. यस. So when you understand that I am being operated by the victim ego, now you have a freedom to. आपको पहले विटनेस तो करो कि आपका कौन सा ईगो पैटर्न चल रहा है. अगर आपके लाइफ में रोना धोना चल रहा है तो आप विक्टिम ईगो हो. और अगर आप गुंडागर्दी, दादागिरी कर रहे हो तो आप विलेन ईगो हो. विक्टिम और विलेन हमेशा पेयर में चलेगा ना. सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पेयर में चलेगा.
कोई एग्रेसिव होगा तो डिफेंसिव होगा, कोई कंप्लेनिंग है तो कोई एलूफ ईगो होगा। ईगो का पैटर्न क्या है? वॉट एवर यू थिंक यू आर इज एक्चुअली द पर्सनैलिटी दैट यू आर इज नथिंग बट ईगो। कंडीशन ही तो है ना, आप जो कुछ हो सोसाइटी कंडीशनिंग से ही बने हो ना। यस और नो? इफ आई से आई एम काम, तो ये भी ईगो है। क्या? आई एम काम, कौन बोल रहा है? आई एम, आई कौन है? देखो यही तो फिगर आउट करना है। देखो, यही तो मैं बोल रहा हूँ। आत्मा अगर है, आत्मा तो हमेशा फ्री है, वो क्यों बोलेगी आई एम काम? ये ईगो का ड्रामा है, मैं शांत हो गया हूँ। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपकी लैंग्वेज जो है वो खुद ही बता रही है। आए अगर आप बोल रहे हो तो ईगो के इम्पैक्ट में ही बोल रहे हो ना। आई कौन है बताओ? शरीर को तो हम आई नहीं बोलते। अगर वो बोलते तब तो और भी नीचे नीचे वाले स्तर पे हो आप, इफ यू थिंक यू आर द बॉडी। बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम ये जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ। लेकिन अहंकार, अहंकार क्या है? अगर आप बोलो, अपने अहम को एक आकार दिया है ना आपने, और अहम को आकार तभी मिलता है जब आप शरीर में हो। जब तक शरीर में हो ईगो रहेगा। इसको इसको नकारने की जरूरत नहीं है, इसको जितना हम एक्सेप्ट करेंगे उतनी जल्दी फ्री हो जाएंगे। एज लॉन्ग एज आई एम इन द बॉडी आई विल ऑपरेट फ्रॉम ईगो, विच इज ओके, इट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। But then it should not hamper you when you are living your life and enjoying the aspects of life in health, wealth and relationships. अगर आपको फुलफिलमेंट चाहिए रिलेशनशिप में तो ईगो के पैटर्न्स को समझना पड़ेगा, उसको ट्रांसेंड करना पड़ेगा और अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे जाना पड़ेगा। तभी आप ट्रांसेंड कर पाओगे और फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस करोगे। मेकिंग सेंस? एंड यू हैव डन इट तरुण, व्हाट यू शेयर्ड, इट इज वेरी ऑब्वियस कि पहले आप ईगो में थे, अब ईगो के पैटर्न से बाहर निकल रहे हो। इसी को स्वाध्याय करना है और इसी को आगे बढ़ाना है। उसी को पॉलिश ही करने की कोशिश कर रहा था मैं। तो पॉलिश ही करना है, लेकिन अपने गोल्डन केज को पॉलिश नहीं करना है। अपने ऊपर के जो तमस और रजस के संस्कार हैं उनको हटाना है। जैसे जैसे वो हटेंगे आपका ईगो का इम्पैक्ट कम होगा और अहम जो है बना है, अहम डिसॉल्व हो जाएगा आत्मा में। ईगो के कोर में ही तो ईगो इज व्हाट? ईगो इज जस्ट द डिविनिटी सराउंडेड बाय तमस एंड रजस एंड सत्वा, जिसको अमित जी सोल सेट बोलते हैं। तो अगर उन पर लेयर्स को हटा दोगे, अंदर से तो डायमंड ही है ना, अंदर तो डिविनिटी है ही। वंस यू रियलाइज दैट डिविनिटी देन यू आर थ्रू, फिर तो आप रॉकेट की स्पीड पे ऊपर जाओगे। तो लोअर 3 चक्रास में ईगो का इम्पैक्ट रहेगा ही रहेगा। तो अगर आप रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा एंड सोलर चक्रा के कॉन्शियसनेस में हो, ईगो का इम्पैक्ट भयंकर है वहां। उसमें आप ये नहीं बोलोगे मेरा ईगो, आप बोलोगे मैं हूं, मैं ईगो हूं नहीं बोलोगे, आप बोलोगे मैं हूं, यही हूं मैं। एंग्री यंग मैन, एंग्री ओल्ड मैन, देवदास, मीना कुमारी। ये नहीं बोलते कि मैं मीना कुमारी की एक्टिंग करूँ, मैं मीना कुमारी हूं, मैं ट्रेजेडी किंग हूं, मैं ट्रेजेडी क्वीन हूं। लाइफ में सफरिंग है, लाइफ डेंजरस है। ये सब विक्टिम ईगो की कहानियां है ना। मेकिंग सेंस? सो लैंग्वेज से पता लग जाएगा आपके, अगर आप थोड़ा सा स्वाध्याय करोगे कि आप ईगो के कितने, ईगो के प्रिजन में कैसे बैठे हुए हो। कंफर्ट जोन में हो तो यू आर लाइक ए बर्ड इन ए केज। कल मैंने एक पोस्ट में लिखा था, यू आर ए बर्ड एंड यू हैव विंग्स, यू शुड बी फ्लाइंग इन द स्काई, व्हाई आर यू क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर? तो चेतना अगर आपकी अर्थवॉर्म की जैसी है तो वो जमीन पे क्रॉल ही करेगी ना। कॉकरोच की जैसी है तो जमीन पे ही पड़े रहोगे। केंचुए हो तो आपके लाइफ पार्टनर भी केंचुए ही होंगे ना।
बच्चे भी छोटे छोटे केंचू ही होंगे, समझ रहे हो? राइट? अगर ईगल की जिंदगी बितानी है, यू हैव टू राइज इन योर कॉन्शियसनेस, बिकम एन ईगल, फ्लाई हाई इन द स्काई, फिर आपको पार्टनर भी ईगल वाला ही मिलेगा ना। ईगल का पार्टनर अर्थवर्म तो नहीं हो सकता ना, और अर्थवर्म का पार्टनर ईगल तो नहीं हो सकता। मेकिंग सेंस? So the life partners, the soulmate, the people in your life will depend on the level of consciousness you are living. That is why spirituality is so important. If your life is suffering and misery है, suffering है life में, तो आपके consciousness बहुत low level पे है, नीचे वाले 3 चक्रास में ही घूम रहे हो। How many of you can connect with this? हमें जी ज़्यादा deep तो नहीं हो रहा है, heavy तो नहीं हो रहा है, क्योंकि this was not planned. I don't know why this is coming out, but this is coming out, so let it be. That's what I think. So if you want to share something, you can share that so that we know. आवाज नहीं आ रही अमित जी? आवाज नहीं आ रही हो। अमित जी आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है? Hello, 1, 2, 3. हाँ हाँ आगे ठीक है, आगे अभी जी आगे। ठीक है। Okay. Okay. I think my microphone, तो उसकी battery is off. Okay. So my understanding, so I think it got a little specific to a particular topic. हमारा objective था एक overall spirituality का, लेकिन जहां तक मेरी understanding है about ego, एक जगह मैंने कहीं किसी एक मूवी है समाधि, कुछ लोगों ने देखी, उसमें एक विजुअल देखा मैंने। उसमें देखा कि जब बच्चा सिर्फ एक कुछ क्रॉल ही करना शुरू कर रहा है, just about let's say 2, 3, 5 months, and then he lands up seeing a mirror for the first time. Yeah. So the first day when he sees the mirror, he gets completely amazed and surprised कि मैंने क्या देख लिया। वो ऐसा उसमें प्रेजेंट किया गया मूवी में, और उसमें बहुत ही इंप्रेसिव वर्ड्स में बोला जो मुझे भी याद नहीं है, बट दैट इज द फर्स्ट डे व्हेन द इड और आइडेंटिटी स्टार्ट्स टू गेट क्रिएटेड। ना वहां से मैंने कुछ सीखा, जो आप लोगों से भी सीख रहा हूँ, पहले भी सीख रहा हूँ, कि असल में जब हम ईगो बोलते हैं उसमें ना 2 अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं। एक तो बेसिक एंट्री लेवल का इंग्रेडिएंट है इड या आइडेंटिटी, जिसको मैं अपनी लैंग्वेज में ईगो बोल लेता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्वर्सेशंस विद अदर्स, बट दैट इज इड एंड आइडेंटिटी, जिसको मरने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि अगर वो मरेगा तो मतलब हमको वी विल हैव टू लीव दी बॉडी। अब दूसरी चीज, जो दूसरा पार्ट है जिसको हम ईगो बोलते हैं, उसको मैं पर्सनली बोलता हूँ अहंकार। फॉर एग्जाम्पल आई मे बी रॉन्ग, टर्मिनोलॉजी चेंज कर सकते हैं, बट द डे आई स्टार्टेड टू सी दीज 2 थिंग्स डिफरेंटली, कि हमें इड और आइडेंटिटी का होना तो लाजमी और इम्पॉर्टेंट है ही फॉर आवर एग्जिस्टेंस, पर जो अहंकार है वो जो अलग इंग्रेडिएंट है, जो इसके ऊपर की लेयर है एडिशनल, जो हमें बड़े होते हुए मिलती है, उसको कंट्रोल में और हटा के रखना इज दी जर्नी ऑल अबाउट। तो जैसे व्हाट तरुण वाज टॉकिंग अबाउट, कि मैं काम हो गया, तो अब ये देखना है कि ये ईगो बोल रही है या आइडेंटिटी बोल रही है। एक ऐसी स्टेज भी आती है जिसमें हम बड़े ठीक ठाक से अवेकंड हो जाते हैं, मतलब जैसे शशि जी आप ही है, और अनिरुद्ध जी बहुत अच्छे लेवल पे है, लेस्ली भाई भी अपने बहुत बढ़िया अवेकंड है तरीके से, तरुण भाई की जर्नी थोड़ी अभी स्टार्ट हुई है, मे बी इस बॉडी में थोड़ा यंग है, बट ही इज ऑल्सो प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट। मान लीजिए एक ऐसे स्टेज पे आते हैं जिसमें हम कहते हैं मैं स्पिरिचुअल हूँ और मैं अवेकंड हो गया हूँ और अब रियलाइजेशन की तरफ चल रहा हूँ, और अब समाज में एज मच एज पॉसिबल मैं स्पिरिचुअल रिफॉर्म में भी कंट्रीब्यूट अगर कर पाऊँ, और मैं कुछ नहीं हूं, मैं खाली बॉडी हूं और मेरे थ्रू प्रकाश आता है जाता है। अब ये बात बोल रहे हैं, अब कहने वाले या देखने के तरीके से ये भी लग सकता है कि ये भी एक ईगो ड्रिवन स्टेटमेंट है, बट एक्चुअली फिर ग्रामेटिकली देयर हैज टू बी डिफरेंट वर्ड व्हिच शुड बी देयर इन द डिक्शनरी, जिसमें हम आई को रिप्लेस कर सकें किसी और शब्द से। अल्टीमेटली ये सब मंथन होते रहते हैं हम सभी के दिमाग में। मेरे को ये समझ में आती है कि जैसे जैसे जर्नी में बढ़ते हैं हमें समझ में आ जाता है कि कौन सी चीज पे कट ऑफ हो रहा है, फ्रॉम इड टू ईगो, फ्रॉम आइडेंटिटी टू अहंकार, और ये सबको अपने अंदर पता होता है कि वो कब अहंकार से बोल रहे हैं। तो कमिंग बैक टू व्हाट स्पेसिफिकली व्हाट तरुण भाई वाज टॉकिंग अबाउट, आई एम काम perhaps is a very good statement, very good thought and zone to be in, which is coming from ID, identity,
ना कि ईगो। मेरा मेरा ये थोड़ा सा Point इंटरप्रिटेशन है। taken. Point taken. Yes, it could be there. So this is about this. बाकी ओवरऑल स्पिरिचुअलिटी पे मतलब इस पे अगर किसी आपको somebody wants to say a few words they can. That's fine. Perfectly fine. Perfectly fine, Amit ji. Let's acknowledge Amit ji. That's great. Wonderful. मैं अपने विचार बताएं हाँ सर, हाँ। एड्रेस है, but please over to you. हाँ जी बोलिए। सर। स्पिरिचुअलिटी के बारे में पहले तो ये है कि इसका बेनिफिट क्या है। जो मेन बेनिफिट जो मुझे लगता है, बेनिफिट तो बहुत हैं, मैं सिंपल टर्म्स में बात कर रहा हूँ। सिंपल टर्म्स में इसके बेनिफिट हैं पीस, हैप्पीनेस एंड ब्लिस। अगर आप इसकी तरफ जाओगे तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट पीस, हैप्पीनेस एंड ब्लिस। वही हर एक आदमी की चॉइस है, वही आदमी की रिक्वायरमेंट है इस समय। और इसको पाने के लिए जो है, जो रास्ता है, वो मैंने देखा यूनिटी का है। अपने अंदर यूनिटी को बढ़ाओगे, सेपरेशन को कम करोगे, तो आप स्पिरिचुअलिटी के ऊपर जाओगे। जितना ज़्यादा हर एक के अंदर यूनिटी का लेवल भी है, सेपरेशन भी है। यूनिटी का लेवल इसलिए है कि कुछ लोग हमें अच्छे लगते हैं, सेपरेशन है कुछ लोग अच्छे नहीं लगते, है ना। तो हमें यूनिटी का लेवल बढ़ाना है। स्पिरिचुअलिटी में यूनिटी का लेवल इतना बढ़ जाता है कि हर आदमी अच्छा लगता है। दैट इज द फाइनल स्टेज। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो वो उस स्टेज में आकर उसको हम वननेस कहते हैं, यूनिटी कहते हैं, इंटरकनेक्टेडनेस कहते हैं। और उसको डिविनिटी में अगर लेके जाए, एक्सप्लेन करें, तो उसमें कहते हैं कि अगर हमारे अंदर डिविनिटी आ रही, हर इंसान में डिविनिटी है, तो वो डिविनिटी जो है वो सभी में है। दैट इज यूनिवर्सल, हर जगह है। तो हर जगह हमें डिविनिटी नजर आती है, हर इंसान में, हर बीइंग्स में नजर आएगी, तो वो स्पिरिचुअलिटी है। बहुत बढ़िया। और वो पाने का तरीका यही है कि अपने अंदर यूनिटी जो है वो बढ़ानी होगी, सेपरेशन कम करनी होगी। और जैसे अभी बताया है कि सेपरेशन को कम करने के जो तरीके हैं, उनको छोड़ना होगा। सबसे बड़ा जो तरीका है, एंगर है, ईगो है, ग्रीड है, ये सब चीजें हमें एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, है ना। तो इनको छोड़ोगे तो वो यूनिटी बढ़ जाएगी, है ना। दूसरा ये है कि इसमें है, अगर जो डिसएग्रीमेंट है उसको कैसे सोल्व करना है, उससे यूनिटी बढ़ती है ना। वो बहुत जरूरी है कि सब झगड़ों की जड़ डिसएग्रीमेंट है। तो यूनिटी और कैसे बढ़ाओगे? यूनिटी बढ़ाने का यही तरीका है कि किस तरीके से बढ़ाया जाए। और यूनिटी बढ़ाने का तरीका है कि हेल्प अदर्स, सेल्फलेस सर्विस तो नॉर्मल है। और हेल्प अदर्स करने का तरीका यह है कि हमेशा बी रेडी, अलर्ट एंड अटेंटिव टू हेल्प अदर्स। जब भी मौका मिले, जरूरी नहीं कि पैसे से करना है, अपने वर्ड से कर सकते हो, कुछ सलाह दे सकते हो, है ना, किसी को रास्ता दिखा सकते हो। तो दिन में 4-5 मौके मिलते हैं, हर एक इंसान को मिलते हैं। तो कोई स्टार्टिंग फ्रॉम द फैमिली, फिर क्लोज, कि हेल्प का चांस ना छोड़ें। और अभी इसमें जो एक बात आ रही थी ईगो की, क्या है, ईगो जो है उसको छोड़ने का तरीका जो मुझे लगता है वो यही है कि यूनिटी में आना है। जितना ज्यादा यूनिटी में आओगे तो ईगो अपने आप खत्म होगी। यूनिटी का मतलब है वननेस, वी। जब वी में आओगे, यूनिटी में आओगे, तो अपने आप ईगो खत्म हो जाएगी। उसमें आपको ईगो का, और दूसरा है कि अगर ईगो की जड़ में जाओगे, कि आई और ईगो की जड़ क्या है, जैसे काफी रमन महर्षि वगैरह ये सब बताते हैं होम आई की जड़ में जाओगे। तो अगर आप आई की जड़ में जाकर, उसकी जड़ में जाकर आपको यूनिटी नजर आती है, वी नजर आता है, वननेस नजर आता है, यूनिवर्स नजर आता है, तो आप आई से खत्म होने की तरफ जा रहे हैं। तो ये जरूरी है कि अपने आप यूनिटी को लाना, वी को लाना, यूनिवर्स वननेस को लाना जरूरी है। तो वो आप ईगो को खत्म कर सकते हैं। और दूसरा है कि ईगो का क्या होता है, एक्सेप्ट अदर एज दे आर। तो वो भी एक तरीका है ईगो को खत्म करने का। उसमें यही है कि सेपरेशन खत्म हो जाती है। आप दूसरे को जैसा है वैसा मान रहे हो, तो इसका मतलब तुम उससे कोई नाराज नहीं हो। या जज करना छोड़ दो। जज करने से भी क्या होता है कि आप डिफरेंस क्रिएट करते हो। तो कोई भी चीज जो डिफरेंस क्रिएट करती है उसको छोड़ना होगा। और फाइनली जो मैं ये कहना चाहूंगा, स्पिरिचुअलिटी में जब आते हैं, जैसे बताया था, तो जैसे जब आदमी स्पिरिचुअल हो जाता है, तो फिर माइंड
और बॉडी भी, वो अपने आप ही नेचुरल वननेस के लिए काम करेगी। उसके लिए माइंड को और बॉडी को काम नहीं करना है, वो अपने आप ही वननेस के लिए काम करेगी, नेचुरल। जो भी आप काम करोगे वो वननेस के लिए करोगे। अगर जो बोलोगे, जो लिखोगे, जो बात करोगे, इवन जो आपकी एक्टिविटी होगी, सब वननेस के लिए। वननेस का मतलब यूनाइटेड, यूनिटी के लिए होगी। तो उसमें माइंड और को स्ट्रेस देने की जरूरत, माइंड को और बॉडी को स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं, वो स्पिरिचुअलिटी में मिल जाएगी। परफेक्ट, दूसरा तरीका बहुत बढ़िया। इसमें ये कहते हैं कि माइंड और बॉडी को, जो बस लास्ट में, माइंड और बॉडी को स्पिरिचुअलिटी के अंदर, जिस भी आपको मानते हो, जिस इसको मानते हो, वो उसके अंडर काम करना चालू कर देती है, बॉडी और माइंड। तो दैट इज ए स्पिरिचुअलिटी। बस मैं इतना ही कहना चाहूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Thank you. एक्नॉलेज अमित जी एंड अनिरुद्ध जी। या तो कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे बोले हैं आपने। जो आपने बोला था कि डिविनिटी यूनिटी है एंड ईगो सेपरेशन है ना। तो ईगो के तह में डिविनिटी ही है, बिकॉज बेसिकली ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर डिवाइन। और वो डिविनिटी एक्सपीरियंस क्यों नहीं हो रहा है, यूनिटी एक्सपीरियंस क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ऊपर बहुत सारी लेयर्स उसमें जमा हो गई हैं, तमस की, रजस की, सत्वा की, है ना। तो पहली क्वालिटी हमको ये करनी है, तमस और रजस से फ्री होना है, सो दैट द डिविनिटी कैन शाइन थ्रू। और सत्वा की क्वालिटीज को एस्टेब्लिश करके हम यूनिटी कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ सकते हैं, जो अनिरुद्ध जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, राइट। तो उसमें सेपरेशन खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा मतलब ये है कि सेपरेशन को हम, ईगो को हम ट्रांसेंड कर सकते हैं। मैं खत्म करने की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक शरीर में है ईगो खत्म नहीं होगा। क्योंकि जब तक शरीर में है ईगो, देखिए अहं, ईगो को जब हम अहंकार बोलते हैं तो अहम का आकार है। अहम कौन है? आत्मा है। आत्मा का क्या है क्वालिटी? निराकार है। लेकिन जब निराकार को हम एक आकार दे देते हैं, हम फंस जाते हैं। और इस समय हमने निराकार को क्या आकार दिया? शरीर का। तो मैं शरीर हूं, ये सबसे बड़ा एक रियलिटी है ईगो के लिए। तो ईगो कहता मैं हूं। और जब भी मैं हूं आ रहा है, अब मैं क्या हूं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, कौन सा फ्लेवर आपका ईगो का चल रहा है। बट मैं हूं जो बोल रहा है वो अहम का आकार बन के बोल रहा है। जैसे ही हम आकार को हटा देते हैं, व्हेन आई से आई एम नॉट द बॉडी, आपने आकार को डिसमेंटल कर दिया। एंड ए पर्सन, ए साधक जो इस पे बिलीव करता है, वो अहम के बंधन से मुक्त होना शुरू हो जाता है। पूरा नहीं होगा, लेकिन वो जर्नी है, इट्स अ प्रोसेस, है ना। तो जैसे ही अहम फ्री होता है आकार से, अहम आत्मा बन जाती है, क्योंकि उसके कोर में आत्मा ही है, डिविनिटी है। एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट और जर्नी फ्रॉम सेपरेशन टू यूनिटी, जो अनिरुद्ध जी इतने पावरफुली इन्होंने एक्सप्लेन किया, है ना। पर उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है कि ऊपर की जो लेयर्स हैं उसको हटाना है। इसी के लिए हम साधना कर रहे हैं। जैसे ही वो हट जाएगी, जब जैसे ही जैसे अनिरुद्ध जी ने बताया, उसमें क्या है, आपके थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस ऑटोमेटिकली विल बी ए ब्लेसिंग फॉर द ह्यूमैनिटी। आप सर्व ही करोगे, आप और कुछ कर ही नहीं सकते उसके बाद। पर शर्त यह है, आपकी साधना इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि तमस और रजस को अलग कर सके। अदरवाइज ईगो के पैटर्न में हम फंस जाते हैं। तो पहले ये देखना है कि ईगो के कौन से पैटर्न्स हम पे हावी हैं। अगर वो डिस्टिंग्विश कर लिया तो वो लेयर हटाना शुरू कर देंगे हम, है ना। वो लेयर हटानी जरूरी है, क्योंकि तभी हाईएस्ट पोटेंशियल पे पहुंचेंगे। जब हाईएस्ट पोटेंशियल पे पहुंचेंगे, फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। फिर तो जैसे कहा कि बॉडी और माइंड ऑटोमेटिकली ह्यूमैनिटी की सर्विस में ही लगेंगे। और जो हमारी जो बेस्ट पोटेंशियल है उसमें करेंगे। कोई हीलर होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, कोई क्रिकेटर होगा, कोई फिल्म इंडस्ट्री में होगा, जो भी होगा, आपके स्पेसिफिक जो स्किल्स हैं, नॉलेज है, उसके हिसाब से आप कुछ बड़ा रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे लाइफ में। वो होना ही है, स्वतः होगा, नेचुरल होगा। यस, लेट्स एक्नॉलेज अमित जी एंड अनिरुद्ध जी, बहुत बढ़िया। हाँ, अमित जी ने एक पॉइंट बोला था, छोटा बच्चा जब शीशे में देखता है तो वहां पे बेसिकली क्या हो रहा है, आइनस के लिए उसको हैरानी हो रही है कि मैं ये शरीर हूं। पहली बार उसको एक्सपीरियंस हुआ कि मैं शरीर हूं। वहां पे हार्मलेस नहीं, हार्मफुल नहीं है, वो हार्मलेस है, लेकिन ईगो गॉट क्रिएटेड, दैट इज ट्रू। अब उसमें फ्लेवर नहीं आया है,
उसमें अभी तमस नहीं आया है, उसमें अभी रजस नहीं आया है, उसमें सिर्फ मैं अहम का आकार बन गया है, अहंकार बन गया है, राइट। अहंकार डजंट मीन्स प्राइड, अहंकार जस्ट मीन्स ईगो को एक फॉर्म मिल गया है, जो कि एक्चुअली में आत्मा निराकार थी, उसको एक आकार दे दिया गया है। नाउ इट इज लिविंग दैट इल्यूजन फॉर द रेस्ट ऑफ इट्स लाइफ। उसी इल्यूजन को तोड़ना है, दैट्स व्हाई वी से अहंकार एक इल्यूजन है, राइट। ईगो इज एन इल्यूजन, ईगो डजंट एग्जिस्ट। बट अगर मैं बहुत दिनों तक एक ही चीज को मानता रहूं तो एक मेंटल प्रिजन बन जाता है, और उस प्रिजन में मैं कैद हो जाता हूं। एक्चुअली वी आर ऑल फ्री, कोई बॉन्डेज है ही नहीं, आत्मा इज ऑलवेज फ्री। लेकिन ईगो के बॉन्डेजेस में हम आ जाते हैं, क्यों? बिकॉज वी बिलीव वी आर इन बॉन्डेज, और वो ये तमस और रजस की वजह से, माया बोल लो, जो भी बोल लो। So when we live in this world, we are under the impact of matrix conditioning, और इस कंडीशनिंग की वजह से हम फंस जाते हैं। तो उस कंडीशनिंग को तोड़ना जरूरी है। सोसाइटी के जितने कंडीशंस हैं, जितने बिलीव्स हैं, जितने फियर्स हैं, इन सबको तोड़ना पड़ेगा। Then only we can be moving on the path. Correct. Yes. All right. Very good. Let's acknowledge everybody who shared. Anybody who has anything else to add? Leslie, anything you want to share? We have crossed the scheduled time. Anything you want to share before we close? See, my understanding is ego is when you desire a result, when you desire a result, even a result when you desire that there should be unity, there should be no anger. This is all coming out of desire. This is all coming out of ego. It is all an interpretation. कुछ आपको दिखाया गया, समझाया गया, आपको अच्छा लगा, आप उसके प्रति काम करने लगते हैं, वो ईगो ही है। अगर मैं नेचर को देखूं तो मेरे लिए नेचर ऑलरेडी यूनिटी में चल रहा है, इट इज ऑलरेडी वन, वो चल ही वननेस पे रहा है। एंगर हो गया, लड़ाई हो गई, प्यार हो गया, वो सब कुछ एक ही का हिस्सा है, वो अलग नहीं है। तो एक को हटा के दूसरा चाहना इज ईगो। तो मेरे लिए spirituality, the highest level of understanding of spirituality is when you see कि कुछ भी नहीं बदलने की जरूरत है, मुझे ये परफेक्ट चल रहा है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मैं संसार, लड़ाइयां, वॉर, प्यार, संबंध, सब कुछ नश्वर हो जाना, और एक्चुअली देखा जाए कोई भी चीज स्थिर नहीं है, इट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। सो द एसेंस इटसेल्फ इज distraction, creation, destruction and creation. So how can you yearn for only one particular part? Can you aisa hona chahiye? I personally feel any preferences is ego. So whatever there is, it's perfect. That's it. This is my understanding. Very good. Very good. बहुत बढ़िया है, ये एक अलग अंडरस्टैंडिंग है। So let me put it a bit more clearly so that people can understand. Let's first acknowledge Leslie. Very good. So what Leslie is talking of is to go into the wisdom of सांख्य। सांख्य फिलॉसफी में क्या बोलते हैं? जड़ और चेतन। प्रकृति क्या है? जड़। प्रकृति क्या है? जड़। तो हमारा शरीर और हमारा जो मन है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये भी जड़ है। जड़ में क्वालिटी क्या होती है? जड़ में गति आती है गुणों की वजह से, गुणास की वजह से, है ना। तो जैसे पेड़ है या नदी है या पहाड़ हैं, ये सब परफेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई वायरस नहीं है, कोई बग नहीं है, कोई मैट्रिक्स का ग्लिच नहीं है, समझ रहे हो? कोई वायरस नहीं है उसमें। नदी बह रही है मतलब बह रही है, हवा चल रही है, पहाड़ है। प्रकृति में जो कुछ हो रहा है उसकी गति कैसे हो रही है? 3 गुणों की वजह से, तमस, रजस और सत्वा, है ना। ओनली प्रॉब्लम इज जब हम इंसान की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं, बाकी प्राणियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर ऑल फॉलोइंग द धर्मा। वो धर्म के, अपने धर्म के अनुसार से, अपने नियत जो उनका नेचर है उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रकृति में।
और प्रकृति में गति लाती है क्या? चेतन। तो प्रकृति में जड़ और चेतन की वजह से सब कुछ सही चल रहा है, यहां तक तो बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है? अहंकार। अहंकार जो है उसमें गति कहाँ से आती है? उसमें गति कहाँ से आती है? डिजायर से। डिजायर है, कामना है, नाउ ही वांट्स टू डू समथिंग, एंड मोर ओवर वॉट एवर इज बीइंग डन थ्रू दिस बॉडी माइंड, अहंकार से मैंने किया, मैंने सांस ली, मैंने खाना डाइजेस्ट किया, जबकि उसने कुछ नहीं किया। ठीक है। तो एक अहंकार में जो गति आती है वो आती है डिजायर से, राइट। और सोल लेवल पे अगर मैं बोलूं, चेतना जो है, चेतना में जो गति आती है वो किससे आती है? वो आती है, गति सिर्फ एक ही होती है चेतना की कि उच्चतम स्तर पे पहुंचना है, दैट्स ऑल। तो 3 लेवल पे मूवमेंट्स हो रही हैं। जड़ की जो मूवमेंट है वो गुणों की वजह से हो रही है, वो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा शरीर भी वैसे ही है, हमारा मन भी वैसे ही है, माइंड बॉडी, स्थूल शरीर है या सूक्ष्म शरीर है, ये दोनों गुणों के हिसाब से चल रहा है सही। ओनली प्रॉब्लम आता है हमारा जो वायरस आ गया, ईगो, वो कहता है मैंने चाहा, मैंने किया, मैं करता हूं। कर्तापन की वजह से सारी प्रॉब्लम आ रही है, वही है ईगो। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने यही तो समझाया है कि कर्म करने के लिए कर्ता होना जरूरी नहीं है अर्जुन, तुम सिर्फ कर्म करो। ये तुम अपना धर्म करो, कर्म तो अपने आप हो ही जाएगा। तुम करता नहीं हो किसी चीज के, इसलिए आप उसके ऊपर अपना दुखी मत हो जाओ कि मुझे उनको मारना पड़ेगा या मैं मर जाऊंगा या वो मर जाएंगे। कर्तापन छोड़ दो, अहंकार में फंस गए हो। दैट्स व्हाट ही इज टेलिंग हिम, नो। तो कर्म करने के लिए कर्तापन की जरूरत नहीं है, पर ये आत्मज्ञान से ही आएगा। आत्मज्ञान से ही निष्काम कर्म होता है, तभी कर्तापन से छूटोगे, तभी ईगो से छूटोगे, और तभी दिव्यता आएगी। So what Leslie is saying is not different from what we have discussed. Correct? So Leslie, is that what you meant? Correct? सर मैं थोड़ा एक आ रहा हूँ, सेंटेंस ऐड करना चाहूँ। एक सेकंड आ रहा हूँ, एक सेकंड आ रहा हूँ। लेट मी जस्ट पहले समझ लूँ कि जो उनको बोला यही बोला उन्होंने, कि आप कुछ और बोलना चाह रहे थे। तो लेस्ली, इज दैट फाइन? प्रकृति का अलग है, चलन जो है, गति जो है अलग है, अहंकार की गति अलग है, चेतना की गति, चेतना मीन्स आत्मा की गति अलग है, राइट? बिल्कुल। आप इस तरीके से देखिए कि अगर इंसान ह्यूमन बीइंग्स बिल्कुल खत्म हो जाए, ओके, एक बारी के लिए उनको बिल्कुल खत्म कर दो, फॉर एन इमेजिनेशन, जस्ट टू इमेजिन, तो क्या लाइफ में कहीं पे कुछ गलत है? कुछ गलत It नहीं is है। all in the interpretation of only the human beings, nothing else. So therefore, what I am saying is any kind of preference, आपको ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, वो ईगो ही है। बिल्कुल है। एनी That's all. प्रेफरेंस कि ये ऐसा है या मुझे ऐसा अच्छा लगता है या ऐसा अच्छा नहीं लगता, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, ये सब ईगो ही है। That's why I said, अहंकार में कामना आती है, डिजायर आती है। बिल्कुल। अहंकार में गति डिजायर से आती है। तो डिजायर को अगर आप बिल्कुल लो लेवल पे रखेंगे, ईगो को ट्रांसेंड कर सकते हो। ईगो मरेगा कभी भी नहीं, पर उसको ट्रांसेंड कर सकते हो, एंड यू कैन मूव अहेड इन योर जर्नी। एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट। यस, लेट्स एक्नॉलेज Leslie. यस अनिरुद्ध जी, गो अहेड। बस मेरा जो विचार है उस पर हम लोग सोच सकते हैं। इनके भी जो विचार हैं उसके, वो ये है कि डिजायर जो है, जिसमें वननेस के लिए डिजायर, स्पिरिचुअलिटी के लिए डिजायर, यूनिटी के लिए डिजायर, और ये सेल्फलेस सर्विस के लिए डिजायर है, वो ईगो नहीं है। ऐसा वो मेरा नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। वो See, ईगो नहीं nothing है। wrong with desire and passion. Nothing wrong with desire and passion, but it should be for the वेदांत को पढ़ highest. लेना, उपनिषद को पढ़ोगे अगर, सेकंड, तो यही एक पाओगे कि ये ईगो नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर, मैं बिल्कुल कुरान आपसे पढ़ सहमत लो, हूँ। बाइबल पढ़ लो, वो भी है, इसको ईगो नहीं बोलते। अनिरुद्ध जी, बात पूरी खत्म कर लेने दीजिए। आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा है। उसमें डिस्टिंक्शन सिर्फ इतनी है
कि डिजायर और पैशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिजायर और पैशन ईगो का सबसे न्यूनतम, सबसे निचले दर पे होता है। और जब ये डिजायर और पैशन हाईएस्ट लेवल पे जाएगा तो वो सोल के लेवल पे है। क्यों? क्योंकि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ गई है। तो रूट चक्र पे जो डिजायर है वो ईगो की है, लेकिन थर्ड आई चक्र या थ्रोट चक्र की जो कॉन्शियसनेस होगी, वहां की डिजायर हमेशा सोल लेवल की होगी, और वो बिल्कुल डिजायरेबल है, ये होना चाहिए। तभी सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, क्योंकि पहले हमको अपने उच्चतम स्तर पे जाना है ना। तो हर डिजायर और हर पैशन वो नहीं होगा, सोल लेवल पे नहीं होगा, क्योंकि जो ईगो से आ रहा है वो तामसिक है या राजसिक है। जब वो डिजायर और पैशन सात्विक लेवल पे पहुंचेगा तभी वो सोल की कॉलिंग होगी। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि कॉन्शियसनेस में राइजिंग ऑफ चेतना का जो उच्चतम स्तर है वहां पहुंचना जरूरी है, और यही स्पिरिचुअलिटी है ना। तो यही उपनिषद में कहा गया है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है। यही अष्टावक्र गीता में कहा गया है, यही भगवत गीता में कहा गया है, यही सारे उपनिषद कह रहे हैं। बिल्कुल सही है, राइट। ग्रेट। एनीथिंग एल्स? एनीबॉडी वांट्स टू ऐड? अमित जी? नहीं, और ज्योति जी if you wants to say something, और सतबीर सर अगर आप कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू कुछ शेयर करना चाहें। Yeah, I'll come to that. In case you want to share something, go ahead. Okay, that's fine. So everybody else has shared. सतबीर जी कुछ बोलना चाहेंगे? अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ज्योति जी and Oppo A53, if you want to share something, you can do that. Okay, no response. Right. So in that case, it is already 13 minutes over time. So we will close the session. Thank you very much for your participation, and I hope this session was valuable to all of you. We meet again next session, and we will go into the depths of another topic on spirituality, because this is a series we have started now, and we'll have more wisdom bites next week. Till then, Aham Brahmasmi. Enjoy. Take care. Good night. Bye-bye.